سیدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے پیارے بچوں کو پیار بھرا سلام۔ اللہ تم سب کو خیر ہے تو عافیت کے ساتھ رکھے، دین دنیا کی دولت نصیب کرے، تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کی محبت بڑے پیار بڑے شفقت بڑے سائے قائم رکھے، اور تمام کو اللہ سے تندرستی کے ساتھ حیات دے۔ اور جو ابھی وائرل فیور جو پھیلا ہوا ہے، بخار ہے ادھر ہے، اللہ ان تمام سے تمام مومن مسلمان کو تمام کو اللہ شفا دے اور اچھا رکھے انشاءاللہ۔ سلمہ کی طبیعت اچھی نہیں، طبیعت خراب ہے، بخار ہو گئی ہے، اور میرے پوتے کو بھی ایان ہے اس کا نام، اس کو بھی بخار ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنا بچوں۔ اللہ تمام کو اور ان دونوں کو بھی اللہ صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے، ان کی بخار کو بھی اچھا کر دے۔ اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو رحم کر کرم کر اور سب پر اپنی رحمت برسا دے انشاءاللہ۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ خدا ایسی دولت اور شہرت سے بچائے جس میں انسان غرور و حسد میں مبتلا ہو جائے۔ انسان اعلیٰ عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دولت حاصل کرنے کے لیے گاڑی بڑا گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن واحد چیز جہنم سے خود کو اور اپنے اولاد کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ الحمدللہ، سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنا اور اپنی تکلیف کو بھول کر دوسروں کی پریشانی دور کرنے کے لیے بے قرار ہو جانا ہی ایثار و ہمدردی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد پریشانی دور کرنے کے لیے آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کر آپ کو بخشوائیں گے؟ یہ اولادیں آپ کے لیے قرآن پڑھیں گے جو آج آپ کے کہنے پر نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتے، وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے کیا قرآن پڑھیں گے، کیا آپ کو بخشیں گے؟ یہ رشتہ دار آپ کے لیے دعا کریں گے جن سے آپ کی لڑائیاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ دوست، یہ بہن بھائی آپ کے لیے صدقہ خیرات کریں گے جو عید کا عید ملتے ہیں۔ اے بھولے انسان، خلوص کے دن گزر گئے، افراد تفریح کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں۔ عقل مندی یہی ہے، اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے آنے والی بلاؤں کو رخصت کریں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں بچوں، کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کے پاس جا کر آنے کے بعد میں بچوں کے نام سے کچھ صدقہ وغیرہ کرتے ہیں، مگر پہلے جانے سے پہلے انشاءاللہ صدقہ دے دیے تو کیا ہوتا ہے، اس بیماری سے بھی اللہ دور کر دیتا ہے اور آنے والی بلا بھی دور ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اس کے لیے پہلے صدقہ کریں، پھر ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جائیں گے، اللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے اللہ دعا میں بھی شفا دے گا اور اچھی طرح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو قرآن سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا۔ ہماری زندگی کا بہترین وقت وہ ہے جس میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس لیے قرآن کریم پڑھ کر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو۔ قرآن کی تلاوت دنیا بھر کے غموں سے آزاد رکھے گی۔ دو باتیں دل کو سخت بنا دیتی ہیں، ایک زیادہ سونا اور ایک دوسرا زیادہ کھانا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور نیک توفیق عطا کرے، آمین۔ زندگی میں اللہ سے اس کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگیے۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو مانگتے ہیں لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز میسر ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء پھیکی اور بدمزہ لگتی۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے ذریعے سکون والی زندگی عطا فرمائے اور ہر دکھ، پریشانی، غم، قرض، مرض، آنے والی آفتوں، مصیبتوں سے اور ناگہانی آفاتوں سے اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں وہ جو لوگ جو اپنے رویوں سے، اپنے سلوک سے، اپنی لاپرواہی اور غروری کی وجہ سے پہلے دل سے نکل جاتے ہیں، پھر دعاؤں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ انہوں نے کتنا پیار کرنے والا انسان کھو دیا۔ وہ ان دعاؤں کے حصار سے نکل گئے جو ایک مخلص انسان ہر لمحہ ان کے لیے دعا کرتا تھا۔ اپنے رشتہ داروں کا، غریبوں کا، ضرورت مندوں کا، محتاجوں کا خیال رکھیں اور ان کو اللہ کے رضا کے لیے ان کی مدد کریں تاکہ یہ نیکی آخرت میں آپ کے کام آئے انشاءاللہ۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے بھی دیکھتا ہے۔ وہ کھلی چھپی ہر چیزوں پر
کا خبر رکھتا ہے، ظاہر اور باطن کی اللہ کو خبر ہے، وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ ہمیں درگزر کرے، معاف کرے، آمین۔ اللہ کا ذکر کریں اور روزانہ درود پاک پڑھ رہے، اور درود پاک پڑھنے والے گناہ سے 3 دن تک فرشتے نہیں دکھتے۔ درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ کا شکر کرے۔ اللہ ہمیں جو دیا اس پر شکر، اور جو نہ دیا اس پر صبر کرنے والا بنا دے، آمین۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کرو، اور اللہ کا یہ احسان کیا کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان، ایک مومن کے گھر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ الحمدللہ۔ مریض کی عیادت کرتے رہو، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں برکت دے، ہدایت دے، اچھی توفیق دے، آمین۔ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ استغفار کریں گے۔ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے۔ تدبیر سے، کوشش سے تقدیر بدل سکتے۔ ہم ہمارے اعمال نیک بنائیں گے، صلح رحمی کریں گے، سب کے ساتھ خلوص اور پیار نرمی سے پیش آئیں گے۔ ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں حسد، جلن اور وقت سے محفوظ فرما، ہمارا شمار صالحین اور صابر بندوں میں فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے والا بنا دے، ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا نصیب فرما، ہمیں بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنے کی توفیق دے، ہمیں دین دنیا کی خوشیاں نصیب فرما، ہمیں اسلام کے احکامات پر چلنے والا بنا دے، ہمیں دین کا داعی بنا دے، اور ہمارے اولاد کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو بھی، تمام کو اللہ اچھی توفیق دے، اور ہماری اولاد کو ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر، اور ہمیں حشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمیں اللہ کی تابع داری، فرما برداری، صبر و تقوی، شکر گزاری اور ثابت قدم فرما، ہمیں شفائے کاملہ عطا فرما، صحت و تندرستی کے ساتھ حیات دے، ہمیں کلمے والی موت دے۔ یا اللہ، تیرا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ جو بھی دعاؤں کے لیے کہے ان کی دعاؤں کو قبول کرنا۔ اپنے کاروبار کے لیے جس نے بھی دعاؤں کے لیے کہا تھا، اللہ ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور ان کو حلال روزی نصیب فرما۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے، اللہ ان کے قرض کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ یا اللہ، دنیا میں سکون چاہتے ہو تو قرض کے بوجھ کو بھی ہلکا کر دینا چاہیے۔ اپنے اوپر کسی کے کچھ بھی قرض کا بوجھ رکھ کر نہ جائے، بس ایسی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو ہماری زندگی میں ہمارے سب کچھ، ہمارے قرض چکانے کی توفیق دے، اور ہمیں نیک اور فرما بردار بندوں میں ہمارا شمار کر۔ سب کے گھروں میں اللہ نہ کرے کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو، تکلیف کو دور فرما، اور سب کے گھروں میں نور ہی نور بسا دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور جو بھی بچے یہاں آئے ہیں، جو نہیں بھی آئے ہیں، ان سب کے لیے میری دلی دعا ہے کہ اللہ، جو بچے اس جوانی میں یہ سب کام کرتے ہیں، جو اپنے نفس پر قابو پا کر جو کام کرتے ہیں، اللہ ان کو دولت و ثروت سے نواز دے، ان کو دین اور دنیا کی خوشیاں نصیب کر، ان کے گھروں میں اللہ سب کو خوش رکھے، اور اس کے ساتھ جو بھی ان کی مدد کرتے ہیں، جو نہیں بھی کرتے، اللہ ان تمام کو بھی اللہ خوش رکھے، اور تمام کو صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے۔ اللہ نہ کرے گھروں میں کچھ پریشانیاں ہوں، کچھ تکلیف ہو، تو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، رحم فرما۔ اور یہاں سے جو بھی بچے ہم لوگ جو بھی پڑھیں گے، جب غور سے سنیں گے، اور ہم پہلے سنیں گے، سمجھیں گے، پھر عمل کریں گے، اے اللہ، اور دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ سننے سمجھنے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला का बहुत बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको यहाँ पर दीन की निस्बत लाके जमा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का जितना भी शुक्र करें उतना कम है। देखो बहनों, ये जो हमारा सूरा है, सूरे अन निसा, जो न्यू बहनें हैं उनको खासकर बताना चाहती हूँ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, सूरे निसा की हमारी आयतें चल रही है। सूरे निसा जिसका मतलब है औरतें। अब यहाँ पे जो है एक वाकया जो है, एक आयत नंबर 105 से एक वाकया जो है वो चल रहा है अल्लाह के फजलो करम से, जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला जो है हमको एक आयत भी अगर अल्लाह चाहता ना बहनों तो बता सकता था, है ना, एक आयत भी काफी थी। पर अल्लाह तबारक ताला जो है यहाँ, एक सेकंड, मैंने वो, अच्छा, अल्लाह ताला जो है यहाँ पे इतना सारा, इतनी सारी आयतें जो है वो पहली बात तो बता रहे। और क्यों बता रहे बहनों? क्योंकि अल्लाह तबारक ताला जो है ना वो इंसाफ, अदल वाला है ना, इंसाफ वाला है, अदल वाला है। और अल्लाह तबारक ताला ये नहीं देख रहा है कि चलो नबी से हो गया है, मुसलमानों से हो गया है, हाँ, सहाबा से हो गया है, तो चलो ये बातें छुपा देते हैं या ये बातें नहीं बताएंगे, है ना, ऐसा नहीं है बहनों। अल्लाह तबारक ताला इतना अदल वाला है, इतना इंसाफ वाला है। क्योंकि क्या है, बताऊंगी पूरा वाकया, है ना, यहूदी के ऊपर पूरा इल्जाम जा रहा है, मुनाफ जो भी है। पर अल्लाह ताला अगर चाहता तो छोड़ देता कि नहीं छोड़ो, यहूदी के ऊपर है, यहूदी के ऊपर तो अब मेरी लानत है ना, छोड़ दो इसको ऐसे ही, नहीं। पर अल्लाह तबारक ताला ने एक नहीं बहनों, कितनी सारी आयतें उतारी बहनों, और इस बात को क्लियर किया है। और इतना ही नहीं, हमको भी बता दिया कि तुम कोई भी हो, किधर भी हो, कैसे भी हो, कोई भी कास्ट के क्यों ना हो, कोई भी मजहब के क्यों ना हो, अल्लाह के नजदीक क्या है बहनों? अदल और इंसाफ। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और ये बात हमारे लिए बहुत सारे सबक खोलती है बहनों, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में हमारी डेली जिंदगी से ये रिलेटेड है बहनों, समझ में आ रहा है? हम भी क्या करते हैं ना, हमारे घरों में ये बहुत होता है। क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं ना, तो हम लोग पहली बात तो मानते ही नहीं है कि मैंने गलती की, है ना। हम लोग के हाथ से कुछ भी टूट जाता है या कुछ भी खराब हो जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, और हम लोग नहीं बोलते कि हाँ मेरे से हुआ, हम लोग फौरन बोलते हैं कि अरे मैंने कब की, मैंने कहा की, उसने धक्का मारी, उसका हाथ लगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, है ना। कोई भी गलती उठा के देख लो बहनों, हम लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, उसको मानते नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये हठधर्मी, ये जिद है। पहली बात तो बहनों हमेशा याद रखो, हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? आजिजी। अगर हमने कोई गलती कर लिया है तो हाँ मैंने गलती कर लिया, वहीं से बात खत्म, सॉरी बोल दिए, बात खत्म, आगे बात बढ़ सकती है। पर हम लोग की आदत कैसी है ना, पहली तो अपनी गलती मानते नहीं है, दूसरा वहां पे बहस करते हैं, तीसरा आउट ऑफ टॉपिक कहीं चले जाते हैं, लायानी फालतू बातें कि अच्छा उसने की तो तुम ऐसा किए, उसने की तो वैसा करे, मेरे टाइम पे तुम ऐसा करते, क्या क्या हम लोग ला लेते। बीवी तो इसमें इतनी, हम लोग वाइफ्स तो इतने फेमस है ना, कभी गलती नहीं मानते, उल्टा पास्ट का कुछ उठा लेंगे कि तुम भूल गए 10 साल में तुमने क्या किए थे, हाँ लास्ट टाइम तुमने क्या किए थे, कुछ हम लोग उस बातों को लाके सामने लेकर आ जाएंगे, पर अपनी गलती नहीं मान, है ना। या तो फिर हम क्या करते, दूसरों पे तोहमत लगा देते कि यार मेरी कोई गलती नहीं है, उसने बोली, इसने करी, मैंने क्या करी, है ना, उसकी तरफ से हुआ, इसकी तरफ से हुआ, मैं क्या करूं, मेरे ससुराल वाले बोलते तो मैं करती हूँ, मैं क्या करूं, मेरे बच्चे की ख्वाहिश है तो मैं करती हूँ, है ना। गलती एक तो कर रहे, गुनाह एक तो कर रहे, वहां पे ही तौबा तिल्ला नहीं करते, और ऊपर से दूसरे के ऊपर भी क्या करते, या तो उस ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू हो जाता है, या तो फिर हम लोग क्या करते हैं बहनों, किसी के भी ऊपर बहतान लगा देते। जैसे अगर मेरे हाथ से, मैं बड़ी बहन हूं, अगर मेरे हाथ से कुछ टूट गया तो, और मुझे डर हो गया कि भाई अभी मार पड़ेगी, डांटियां पड़ेगी, तो मैंने फौरन क्या कर दी, काम वाली पे बोल दी, अरे मम्मी मेरे से नहीं हुआ है, काम वाली नहीं की होगी, मम्मी छोड़ो, मम्मी काम वाली है ना, ये ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, मतलब मैंने क्या करी, दूसरों पे बहतान लगा दी। ये भी काम सोसाइटी में आजकल बहुत हो रहा है। और फिर क्या होता है ना बहनों, अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब हमारे बच्चे या हमारे घर वाले कोई ऐसे होते हैं ना, जिनके जो ऐसी फैसले करने की बात आती है, तो हम लोग बोलते हैं मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरा खानदान ऐसा कर ही नहीं सकता।
मतलब क्या बोलने का मतलब है कि हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग इतने अच्छे स्टेटस में हैं, हम लोग से नहीं होगा। हाँ, वो लोग ही ऐसे हैं, वो लोग नहीं किए होंगे। यानी हम लोग दो तरफ का सुनते ही नहीं है। अक्सर मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, हम लोग एक एक बहन को देखते रोते हुए, हम लोग बोलते हैं हाँ बस यही ठीक है, तो सामने वाले का सुनते ही नहीं और फैसला कर लेते, है ना। तो ये सब बारीकी अल्लाह ताला हमको ये वाकया से समझा रहा है कि मुनाफिक ही था, ओके, कमजोर ईमान वाला था, और उससे क्या हुआ, एक चोरी हो गई, और उसने वो चोरी का इल्जाम किस पे डाल दिया, यहूदी पे डाल दिया। और क्या हुआ बहनों, उसके कबीले वाले जो थे, जो मुनाफिक के कबीले वाले थे, वो भी उसका साइड देने लगे, ये बोलते हुए कि हाँ भाई हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान कबीला है, तो हम लोग कैसे चोरी कर सकते, ये कैसे चोरी कर सकता है। यानी वो लोग ने भी क्या किए, गलत का साथ दे दिए। और इससे क्या हो गया बहनों, जो ये यहूदी था, जो बेकसूर था, वो बोल भी रहा है कि नहीं मैंने चोरी नहीं की, ये मुनाफिक नहीं किया, इसने ही लाके रखा, मगर कोई इसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। सबको जो जितने भी प्रूफ्स थे, जितने भी सबूत थे, वो किसके खिलाफ जा रहे थे, यहूदी के खिलाफ। यहूदी के घर में ही वो चोरी का सामान पाया गया था। अभी वो टाइम पे तो सीसीटीवी कैमरा तो नहीं था कि हाँ भाई कैमरा में देख लो, है ना, सड़क में देख लो कौन कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, वो जमाने में तो ये सब नहीं था। मगर क्या हुआ बहनों, कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है वो क्या थी बहनों, अल्लाह तबारक ताला शहीद है ना, अल्लाह ताला जो है वो गवाह है। अल्लाह ताला सब देख रहा है। और यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्वॉल्व है बहनों, समझ में आ नहीं वाले थे, ओके, यहूदी के लिए। मगर क्या हुआ कि यहूदी क्या है, गुनेगार है। मगर अल्लाह तबारक ताला ने फौरन क्या कर दिए बहनों, कुरान की आयतें उतार दिए। आयत नंबर 105 है ना, कि बेशक हमने उतारा है इस कुरान को हक के साथ, ताकि आप फैसला करें लोगों के दरमियान। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला खुद ही कह दिया कि फैसला करो, कुरान आ चुका है, और तुम जो है वो क्या करो, ऐसे धोखा करने वाले, खयानत करने वालों के तरफदार मत हो जाओ, उनके लिए तुम जो है वो प्लीडर मत बनो, है ना, उनके लिए तरफदारी मत करो। इनके बारे में अल्लाह तबारक ताला ने खुद ही आयत उतार दिया। बिकॉज हम लोग भी सोसाइटी में ऐसे ही करते ना, मेरा बच्चा हो या कोई मुसलमान हो, हम लोग जब सुनते हैं तो हमारा पूरा जितना भी बोलते ना, हमारा पूरा अच्छे ख्यालात उन लोग के लिए आ जाते हैं ना, कि हाँ भाई मेरा बेटा है तो वो ही अच्छा होगा, है ना, वो कभी गलत नहीं कर सकता, वो ही ठीक होगा, सामने वाला ही गलत होगा। मैं भी ऐसी थी बहनों। मगर अल्लाह ताला बताते हैं, सचमुच बताते हैं कि नहीं, खुद का बेटा है तो जरूरी नहीं है कि यही। वो लोग इतने इनोसेंट प्ले करते हैं ना कि मम्मी सचमुच, मम्मी सामने वाले की गलती है, उसने ऐसा किया वैसा किया। और हमको लगता है कि अरे मेरे बच्चे को बुली कर रहे हैं, मेरे बच्चे को जुल्म कर रहे हैं, मेरे बच्चे को सता रहे हैं। पर अल्लाह ताला भी बता देता है कि नहीं, तुम तुम्हारे बच्चे की तरफदारी मत करो, तुम्हारे बच्चे ने क्या क्या गलती किया है वो भी देखो, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ बहनों, अल्लाह तबारक ताला ने फौरन कुरान की आयतें उतार दिए, और क्या कहा कि तुम लोग माफी मांगो, इस बातों में झगड़े मत करो। ये जो लोग हैं, ये जो मुनाफिक लोग हैं और उसके कबीले वाले जो गलत का साथ दे रहे, यहाँ पे तो वो झगड़ा कर रहे, यहाँ पे तो बहस कर रहे, यहाँ पे तो वो लोग बच जाएंगे, मगर कल के दिन वो बच नहीं सकते, है ना। अल्लाह ताला साफ कह रहे कि आज तुम बचा लोगे ऐसे लोगों को, है ना, खानदान का नाम खराब नहीं होना, है ना। हम लोग के दिमाग में क्या आएगा, अरे मेरा खानदान का नाम खराब नहीं होना चाहिए, मेरे बेटे का मैं साथ दे देती हूँ, मुझे पता है वो गलत है मगर मैं साथ दे देती हूँ, क्यों, वरना खानदान का नाम खराब हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, अरे मुबीन का बेटा ऐसा किया। हाँ, तो कहीं ना कहीं अपने को हमारे सामने ये सब आ जाता है ना, दुनिया आ जाती है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कहते हैं कि आज तो तुम बचा लोगे, मगर कल तुम बचा नहीं सकोगे, है ना। तो ऐसे काम हमको नहीं करना है बहनों, समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक ताला मुझे और तुम्हें यही बातें समझा रहा है, यही बातें बता रहा है। क्या बता रहा है बहनों, कि हम जो है वो गलत का साथ ना दे। गलत हो गया, फौरन माफी मांगो और आगे बढ़ो। अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा रखा है, अगर नहीं रखता तो सोचो क्या होता फिर, है ना। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है, इतना बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने क्या रखा है बहनों। हाँ, अल्लाह तबारक ताला ने तौबा के दरवाजे रखा है, वरना सोच के देखो बहनों क्या होता था।
अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि हम हमारे तमाम गुनाहों को अल्लाह से माफी मांग सकते हैं ना, कि या अल्लाह माफ कर दे, हमसे ये गुनाह हो गया। आदम अलैहिस्सलाम से भी खता हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम ने वहां खड़े होके बहस नहीं किए, है ना, कि नहीं अल्लाह ऐसा, अल्लाह वैसा, अल्लाह नहीं। कोई एक्सक्यूज ही मत दो, कोई बहाने ही मत करो, हो गई गलती हो गई, बस खत्म वहीं से बात। नहीं मैं तो सही थी, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, नहीं क्यों बेकार की बातें, है ना। अल्लाह जानता है कि कौन सही है कौन गलत है, बस वहीं पे सॉरी बोल के बात खत्म करो, तौबा तिल्ला करो और आगे बढ़ो। शैतान के जैसे नहीं करना है हमको। इब्लिस ने क्या किया था बहनों, इब्लिस ने अपनी गलती नहीं मांगी, है ना, मानी नहीं गलती, उल्टा बहस करने लगा, हुज्जत करने लगा, मैं बेहतर हूँ, ये ऐसा है वो ऐसा है, अल्लाह तूने मुझे ऐसा किया तो मैं भी तेरे बंदों को नहीं छोड़ूंगा। कितनी गलत बातें वो करने लगा। और उसका क्या हशर हुआ, हाँ क्या हशर हुआ इब्लिस का, कि दुनिया में भी अल्लाह की रहमत से दूर है और आखिरत में भी बहनों यहाँ भी वो मलऊन है, अल्लाह की लानत है उस पर। और कल कल भी उसका ठिकाना क्या है बहनों, आग है ना। तो हमको बहनों यहाँ से सबक सीखना है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लास्ट टाइम की जो आयतें थी मैं वहां पर आती हूँ, मगर अब तक जो मैंने समझाया बताया सबको सब बातें क्लियर है बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो ये बातें, ये जो सबक है बहनों, ये एक स्टोरी टेलिंग जैसा नहीं रहे हमारे साथ। ओके, चलो आज एक वाकया सुन लिए, एक हो गया। जो बहनों को पूरा डिटेल में वाकया चाहिए, वो वेनेसडे की जो हमारी रिकॉर्डिंग है उसको जाके प्लीज वो एक बार सुन ले। ओके, वहां पे मैंने डिटेल में पूरा वाकया बताई। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी आयतों पर आ जाते हैं बहनों। 110 वाली आयत तक हमारी वेनेसडे को हो गई थी। अब हम लोग 111 से शुरू करेंगे। ओके, यहाँ पर भी अल्लाह ताला वही बता रहा था बहनों। क्या बता रहा है कि गुनाह हो गया है ना। मैं आ जाती हूँ 110 में ही, जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला जो है वो क्या कर रहा है कि जो कोई अमल करे बुरा या वो जुल्म करे अपने नफ्स को, फिर यानी कि अगर कोई बुरा अमल हो भी जाए और वो अपने नफ्स पर जुल्म कर भी ले, तो उसको क्या करना है बहनों, उस हाल में उसको क्या करना है कि फिर उसको क्या करना है, अल्लाह से माफी मांगना है, उसको क्या करना है, अल्लाह से बख्शिश मांगना है। तो वो पाएगा अल्लाह ताला को कैसा, गफूरुर रहीम। समझ में आ रहा है बहनों, गलती हो गई, बुराई हो गई, अपने नफ्स पर मैंने जुल्म कर दी, ओके फाइन, पर अब मैं क्या करूं, फौरन अल्लाह से माफी मांगू। और अल्लाह को मैं कैसे पाऊंगी बहनों, गफूरुर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बख्शने वाला, बहुत निहायत रहम फरमाने वाला। और अल्लाह ताला फिर क्या कह रहे हैं, और जो कोई, अब यहाँ पर हमारी आयतें शुरू हो रही है बहनों, और जो कोई कमाए बुराई, यानी जो कोई बुराई करता है, गुनाह करता है, हाँ बुराई करता है, गुनाह करता है, सिन करता है, तो सिर्फ वो कमाता है अपने ही नफ्स के खिलाफ। यानी वो जो भी कर रहा है बहनों, जो भी गुनाह इंसान कर रहा है ना, वो अपना ही नुकसान कर रहा है। खुद उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी भरपाई भरना पड़ेगा, वो उसके ही ऊपर आएगा, वो गुनाह उसके ही खिलाफ खड़ा रहेगा। करने के टाइम पे तो जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ, गीबत। ओके, अभी बातें चल रही थी, कुछ गीबत चल रही थी और मैंने जैसे सुनी मैं फौरन आ गई, क्या हुआ क्या हुआ, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, वापस से बताओ, है ना। हम लोग को तो क्या दिलचस्पी आती है ना वो सब बातों में, क्या हुआ फला का, क्या हुआ, क्या बोल रहे थे तुम लोग, वापस से बोलो, मेरे को सुनने का है। और मैं पूरा सुनती हूँ, है ना, वो गीबत में बराबर सुनती हूँ। वो टाइम पे तो मजे आ जाते हैं ना, वो टाइम पे तो मजा आ जाता है, अरे ऐसा हुआ, अरे वैसा हुआ, ये सब हम लोग मजे लेते हैं ना, झूठ हो गीबत हो, है ना, उसमें कितनी दिलचस्पी आती, कितना अट्रैक्टिव होता है। पिक्चर को देख लो ना, एक मूवी चल रही है, बैठ गए वहां पे, गुनाह ही है ना वो भी, कितना अट्रैक्टिव रहता है, कितना इंटरेस्ट आता है कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना। मगर ये सब चीजें क्या है बहनों, दुनिया और आखिरत में इसका मेरा नुकसान है, मुझे इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। कोई बोझ उठाने वाला इसका बोझ नहीं उठाएगा। समझ में आ रहा है बहनों, मैं कितना भी बोलूंगी ना, अल्लाह मेरी कोई गलती नहीं है, मैं ऐसे घर में थी, मैं इन लोग की तरफ से मैं नमाज छोड़ी, मैंने इन लोग की तरफ से हिजाब नहीं पहनी, मेरा ससुराल ऐसा था, मेरा मायका ऐसा था, मैं क्या करूं अल्लाह, कोई एक्सक्यूज,
कोई बहाना अल्लाह ताला जो है उस दिन कबूल नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि जो कुछ भी तुम गुनाह कमाते हो, इसका वबाल तुम्हारे खुद के ऊपर आएगा, तुम्हारे ऊपर खुद ही आएगा। समझ में आ रहा है? कोई बोझ उठाने वाला किसी का बोझ नहीं उठाएगा। आज कितने हस्बैंड है बहनों, जो बीवी बच्चों को पालने के लिए अपनी नमाजें छोड़ रहे, है ना, ऑफिस जाते, दुकान जाते, इतनी मेहनत कर रहे बहनों, नमाजें कजा कर रहे। क्या कोई वो जो वालिद ने इतनी मेहनत कर रहा है, खून पसीने की कमाई कमा रहा है, कल के दिन कोई बच्चा बोलेगा अल्लाह के सामने खड़ा होके, अल्लाह मेरा डैडी ने मेरे लिए बहुत किया, लाओ अल्लाह उनकी सजा मेरे को दे दो, मैं उठाने को तैयार हूँ? नहीं बहनों, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। इनफैक्ट सब भागते रहेंगे, नेकी से भागते रहेंगे कि कोई नेकी नहीं मांग ले। सोचो क्या आलम होगा बहनों। आज हम लोगों के लिए इतने आराम से गुनाह कर रहे हैं, उसको उसको खुश करने के लिए हम लोग बोलते हैं, छोड़ो ना, सास खुश हो जाएगी, वो बोल रही है तो चलो ना ये गुनाह कर लो, है ना। कुछ कितने गुनाह हम लोगों के बोलने पे, लोगों के खुश करने पे कर लेते हैं। याद रखना बहनों, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, कोई मेरी सजा नहीं लेगा, इनफैक्ट नेकी भी नहीं देंगे। मुझे मेरा खुद का बोझ उठाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अल्लाह ताला वही समझा रहे कि जो कोई बुराई कमाए तो सिर्फ वो कमाता है अपने ही खिलाफ, उसका ही नुकसान होता है। और अल्लाह ताला कैसा है? वो खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला, उसको सब पता है। उसको सब पता है कौन क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कैसे कर रहा है, और वो कैसा है? खूब हिकमत वाला है। तो समझ में आ रहा है बहनों, यहाँ पे वो वाक्य से रिलेटेड है, और ये आयतें हमारी डेली लाइफ से भी रिलेटेड है। क्या बता रहा गया आगे का देखो। और जो कोई कमाता है, अब आयत नंबर मैं आ गई हूँ 112 में। ओके, जो न्यू बहने हैं उनके लिए मैं हाईलाइट भी है, तो आप लोग प्लीज यहाँ पर भी अपना तवज्जो रखिएगा इंशाल्लाह। ओके, और जो कोई कमाता है कोई भी खता, यानी कोई भी फॉल्ट, खता यानी क्या? कोई ऐसा गुना जो बिना इरादे के हो गए, यानी कि अनजाने में हो गए। तो जो कोई कमाता है कोई खता या कोई गुना। अब गुनाह कैसे होता है बहनों? इंसान जो है वो जान मुझ कर करता है, इरादतन करता है। और एक होता है जो खता हो जाती है, मतलब इरादा नहीं होता, उसकी उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती है, वो अनजाने में हो जाती है। तो एक अगर कोई खता भी कर रहा है या गुनाह भी कर रहा है, फिर वो क्या करता है? उसको फेंक देता है किसी बेगुनाह पर, यानी किसी इनोसेंट पर वो क्या करता है? इल्जाम लगाता है। जैसे कि यहाँ पर हो गया था, है ना, क्या हो गया था कि मुनाफिक ने चोरी की थी, पर उसने एक यहूदी पर इल्जाम लगा दिया। देखो अल्लाह को ये बात नहीं पसंद आई, अल्लाह ने आयतें उतार दी। अल्लाह ने यहाँ मुसलमान का साथ नहीं दिया, अल्लाह ने पूरे मुसलमान कम्युनिटी का साथ नहीं दिया, कबीले वालों का साथ नहीं दिया, सहाबाओं का साथ नहीं दिया। बहुत सारे सहाबा भी इनके साथ थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके साथ खड़े थे। तो अल्लाह ने ये नहीं देखा कि चलो मेरे नबी भी खड़े हैं, मेरे महबूब भी खड़े हैं, तो चलो जाने दो, मैं जाहिर नहीं करूंगा, हाँ, अकेले में खुफिया वही भेज देता हूँ। नहीं बहनों, यहाँ पे जो आयतें आ रही है ये 1400 साल से है, और इसके बाद ता कयामत तक रहेगी। अल्लाह ताला ने पूरा जाहिर कर दिया। अल्लाह ताला कितना अदल और इंसाफ वाला है। अल्लाह ताला खुद नहीं देख रहा है कि कौन है किसके खिलाफ। यहूदी है बहनों, तो भी अल्लाह ताला यहाँ पे किसका साथ दे रहा है? बेकसूर जो है उसका साथ दे रहा है। भले तुम कोई भी हो, तुम गरीब हो, अमीर हो, तुम कोई भी कास्ट के, कोई भी मजहब के हो, अल्लाह ताला किसका साथ दे रहा है? देख रहे हो ना। तो यहाँ पर हमको भी यही सबक सीखना है बहनों, इंशाअल्लाह। ओके, तो उसने क्या किया? बेगुने, एक जो बेगुनाह था, जो बेताल्लुक था, उस पर क्या कर दिया? इल्जाम लगा दिया। तो तहकीक, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? तहकीक उसने उठाया क्या? बहतान और गुनाह खुल्लम खुल्ला। ना सिर्फ उसने गुनाह किया, बल्कि उसने और क्या किया? बहतान भी लगा दिया खुल्लम खुल्ला। समझ में आ रहा है? एक तो गुनाह किया चोरी का,
वहीं पे माफी तलाफी हो जाती, मगर उसने क्या किया, एक यहूदी पे इल्जाम लगाकर, एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाकर उसने बहतान लगा दिया। और वो भी क्या है बहनों, बहुत ही सीरियस क्राइम अल्लाह के नजदीक है। ये कोई मामूली बात नहीं है, जिसने किया नहीं है उस पर बहतान लगा देना, है ना। ये सब हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में बहुत आम है बहनों। बेकसूर पर इल्जाम लगा देते हैं, और ये सब कबीरा गुनाह है। खुद भी हमको बचना है बहनों, और दूसरों को भी बचाना है। हलाक करने वाले गुनाहों में से है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया, कोई ग्लास तोड़ देता है और डर के मारे बोल देता है सर्वेंट ने तोड़ दी, छोटे भाई ने तोड़ दिया, है ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी ऐसे ही इल्जाम लगाया गया था, है ना। उन्होंने जो है वो जो भी औरत थी, अजीज की जो वाइफ थी, उन पर उन्होंने कोई अटैक नहीं किए थे, है ना। जिस्मानी जो हो रहा था उनके साथ, और भाग रहे थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम तो भाग रहे थे। मगर क्या हुआ था, जो अजीज की वाइफ थी, है ना, मिनिस्टर की जो वाइफ थी, उसने इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने मुझे जो है वो जबरदस्ती की, है ना। तो यहाँ पर वैसे ही हुआ था ना उनके साथ भी, कि गुनाह तो की, जो औरत थी उसने पहले गुनाह की, उसने इनवाइट की, उसने जबरदस्ती की। तो यहाँ पे उसने गुनाह भी की, और जब वो पकड़ी गई तो अपना गुनाह मान लेती तो वो अच्छा होता, मगर उसने क्या की, वो अजीज की वाइफ ने क्या की, फौरन यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगा दी। तो ये वैसे ही है बहनों, गुनाह भी करना और बहतान भी लगा देना खुल्लम खुल्ला। आज दूसरों पर हम कितना इल्जाम लगाते ना, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, हम जिम्मेदारी नहीं उठाते, है ना, अपनी गलती नहीं मानते। तो यहाँ पर मुझे और तुम्हें भी यही सीखना है। यहाँ पर इससे कितने गुना हो रहे हैं बहनों, दो गुना। एक तो गुना वो जो इसने किया, कबीरा गुना, और चोरी का जो भी था, और दूसरा गुना क्या, बहतान भी लगा दिया बहनों। समझ में आ रहा है। तो ऐसा हमको नहीं करना है। यहाँ पे क्या चीज काम आती पता है बहनों, एक इंसान की सच्चाई काम आती। इंसान को हमेशा क्या रहना है, सच, है ना, सच्चाई, सच मतलब एकदम ट्रुथफुल रहना है ना। सच बोलना है उसको, कि अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो सच बोल देता कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मैंने ही चोरी की, तो बात खत्म, है ना। नबी भी माफ कर देते, अल्लाह भी माफ कर देता। पर ये इंसान का इतना बुरा हुआ बहनों, इतना बुरा हुआ, मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ये जो इंसान था, मुनाफिक था, वो एक पैर पे खड़ा था। वो बार बार बोल रहा था कि उसने चोरी नहीं की, यहूदी ने ही चोरी किया। और इतना ही नहीं, उसके कबीले वाले भी सच गलत क्या है नहीं पता, बस उसके घर वाले की मदद कर रहे थे, उसके पूरे कबीले वाले उसकी मदद कर रहे थे। और कहीं ना कहीं सहाबा और नबी भी उन लोग की तरफ ही माइल हो गए थे, क्योंकि वो लोग बातें ही ऐसी कर रहे थे कि हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग क्या चोरी कर सकते क्या, देखो सामने वाला यहूदी है तो वही है जो गलत किया। समझ में आया। तो बातों की टैक्टिस से क्या होता है बहनों, इंसान जो है वो कहीं ना कहीं पिघल जाता है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। मगर फिर ये जो आदमी था, जो मुनाफिक था बहनों, इसके बारे में आता है कि जब आयतें उतर गई और फैसला हो गया कि ये मुनाफिक ही जो है वो गुनेगार है, उसने अपनी गलती नहीं मानी बहन। आयतें उतर गई, ये फिर भी इनकार पर इनकार ही कर रहा था, अपोजिशन ही कर रहा था, मुखालिफत ही कर रहा था। आयतें आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद क्या हुआ बहनों, कि इसका हशर जो है वो बहुत ही बुरा हुआ। आता है कि ये मुनाफिक, एक तो इसने नबी के फैसले पर नहीं आया, तो ये क्या हो गया बहनों, मुर्तद हो गया, इसका ईमान ही चला गया, है ना। और उसके बाद ये मक्का चला गया, मक्के में जाके ये मुश्रिकों के साथ रहने लगा। और एक बार इसने कोई मुश्रिक के घर में चोरी की, और चोरी करके वो भाग ही रहा था कि एक दीवार उस पे गिर गई, और वो वही उसी में मर गया। यानी समझ में आ रहा है, यानी कि ना सिर्फ इसका ईमान गया, बल्कि इसका इसका जो इंतकाल हुआ वो भी कैसे हुआ बहनों, फिर से चोरी करते हुए। ये मुशरिक के घर में चोरी करके भाग रहा था, एक दीवार गिर गई, मतलब वापस से पता चल गया सबको कि देखो, अल्लाह ताला का इंसाफ देखो बहनों, कि ये चोरी करते हुए ही फिर गया। उस वक्त में क्या बोला था कि मैं चोर नहीं हूँ, है ना, मैंने चोरी नहीं की। पर जब इसका इंतकाल हुआ तो देखो कैसा हुआ, ये चोरी करते हुए ही इसकी मौत आई बहन। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अल्लाह ना करे हमारे साथ ऐसा कुछ हो, इसके लिए हमको भी क्या करना है बहनों, यहाँ से सबक लेना है। पहले तो गुनाह ही नहीं करना है, नाफरमानी ही नहीं करना है। और अगर हो गई है तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ
गुनाह हो गया, गलती हो गई, माफ कर दो, लोगों से भी माफी मांगो, अल्लाह से भी माफी मांगो, है ना। मगर कोई भी हालत में उसको ये मत बोलो कि नहीं मैंने नहीं किया, और दूसरों पे इल्जाम मत लगाओ, है ना। बहुतान हो जाता है बहनों, बेकसूर पर इल्जाम लगाना एक बहुत बड़ा बहुतान हो जाता है। इसका वबाल बहुत ही बुरा है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था, है ना, उसके साथ हुआ था। वो तो ईमान से भी गया, हाँ, उसकी दुनिया भी बर्बाद, उसकी आखिरत भी बर्बाद, जो नाम उसका था वो भी खराब हो गया, सबको पता चल गया कि यही चोर था, है ना। तो ये दोनों चीजों में क्या हुआ बहनों, उसी का नुकसान हुआ। तो इससे हमने क्या सबक सीखा, हमेशा सच बोले, अपनी गलती को हमेशा माने, और किसी पर भी क्या ना करे, इल्जाम ना लगाए। इंशाल्लाह सबको ये आयत यहाँ तक समझ में आई बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। 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 हमारी डेली लाइफ में बहुत होता है बहनों, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक सबको क्लियर है। आयशा सिस्टर क्लियर है सिस्टर? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़े बड़े सबक अल्लाह ताला हमको सिखा रहे हैं बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट आयत पर, जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला, हाईलाइट कर देती हूँ, और अगर नहीं होता अल्लाह का फजल आप पर और उसकी रहमत। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, क्योंकि मैंने कहा ना कहीं वो भी उनकी बातों में आ गए, है ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर अल्लाह का फजल और करम नहीं होता, उसकी रहमत नहीं होती, जरूर इरादा कर दिया था एक गिरोह ने। क्या गिरोह ने? उनमें से, किन में से बहनों, जो ऑपोजिशन, जो वो कबीले वाले थे, जो मुनाफिक जो था ना, चोरी जिसने की थी उसके कबीले वालों की तरफ, है ना, उनकी बात हो रही है, वो गिरोह की बात हो रही है। क्या बताया जा रहा है बहनों, कि अगर अल्लाह का फजल नहीं होता, अल्लाह की रहमत तुम पर नहीं होती, तो जरूर इरादा ही कर दिया था एक गिरोह ने उनमें से कि वो तुम्हें क्या कर दे, वो तुम्हें भटका दे, वो तुम्हें धोखा दे दे। वो पूरी कोशिश ही कर रहे थे कि आपको मिसलीड करने की, है ना, आपको धोखा देने की। मगर अल्लाह ताला का कितना बड़ा फजल और करम है ना बहनों, कि अल्लाह ताला ने बचा लिया। और नहीं वो, अल्लाह ताला देखो अभी आगे और भी कह रहे, और नहीं वो भटका सकते मगर किसको, अपने आप को, और नहीं वो नुकसान पहुंचा सकते मगर किसको, किसी चीज को भी। यानी वो लोग कितना भी कुछ भी कर ले, अल्लाह ताला क्या कह रहे कि अल्लाह का फजल था उन पर, है ना। अल्लाह का फजल था, अल्लाह ने बचा लिया, वरना वो तो भटका ही देते, वो तो गुमराही कर देते, गलत फैसले हो जाते बहन, है ना। और नहीं वो भटका सकते हैं मगर खुद अपने आप को, और नहीं वो नुकसान पहुंचा सकते किसी चीज को भी। यानी ये अल्लाह का फजल था, इसके लिए कोई गलत फैसले नहीं हुए, और ये लोग खुद भटक गए, है ना, गलत का साथ दिया। गलत का साथ देने वाला भी क्या होता है बहनों, गलत ही होता है। समझ में आ रहा है बहनों। ये जो मुनाफिक की फैमिली थी, कबीले थे, ट्राइब थे, है ना। तो इससे क्या पता चलता है बहनों कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी गैप का इल्म नहीं है, मगर वो इल्म जो अल्लाह उनको बता रहा है। देखो अल्लाह ताला क्या कह रहा है, एंडिंग में भी अल्लाह ताला वही कह रहा है जो स्टार्टिंग में कहा था, और उतारा अल्लाह ने आप पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्या, इस कुरान को, इस किताब को, है ना। अभी तक कुरान जो है वो किताब की शक्ल में नहीं है बहनों, है ना। अभी तक जुबानी चल रहा है कुरान, पर अल्लाह ताला हमेशा किताब ही कहता है। क्यों? क्योंकि जो किताब, जो कुरान लोहे महफूज में है, उसके बारे में इशारा हो रहा है कि वो भी तो कुरान है ना, लोहे महफूज में, जो किताब की शक्ल में है ना। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि आप पर उतारा, और फ्यूचर में भी किताब की शक्ल होनी थी, अल्लाह ताला ने वो भी एक हिंट दे दिया, है ना। और अल्लाह ताला ने उतारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब और हिकमत, हिकमत यानी सुन्नते। और अल्लाह ताला ने और क्या किया, सिखाया है आपको अल्लाह ताला ने जो नहीं थे आप जानते, यानी जिन बातों को आप नहीं जानते थे, वो भी कौन सिखाता है बहनों, ये कुरान सिखाता है ना। ये कुरान जो है ना बहनों,
अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान से पहले गाफिलीन में से थे, हम लोग ये कुरान से पहले गाफिल थे, इल्म नहीं था बहनों, हमारा देखना सुनना बोलना सब इतना गलत था। अभी जो है ना कुरान क्लासेस में आके कुरान को समझते हुए हमारा देखना हमारा सोचना हमारा बोलना कितनी तब्दीली आ गई बहनों। अब वो लाइफ नहीं रही जो पहले थी, है ना। कुरान के आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक ताला की तरफ से इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा फजल है, इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी नेमत है बहनों के हम अल्लाह का जितना भी शुक्र करे उतना कम है ना। अल्लाह ताला ने हमको ऐसी ऐसी बातें सिखाई, ये सब नसीहतें कहाँ से मिल रही है बहन। वरना पहले तो हम लोग नाइंसाफी करते थे, पहले तो मैं ऐसे ही बोलती थी कि नहीं मेरा बेटा है मतलब गलत हो ही नहीं सकता। पर अल्लाह ताला अब सिखा रहा है कि नहीं, जानो क्या सही है क्या गलत है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा खुद का चहीता है मुसलमान है तो वो गलत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, दोनों तरफ का सुनो, है ना। तो हमेशा ये सब बातें कहाँ से सीख रहे हैं हम लोग, कुरान से सीख रहे हैं बहनों, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना भी शुक्र करे उतना कम है। तो ये जो इल्म की दौलत है, कुरान के इल्म की दौलत है, ये क्या है, ये है फजल अल्लाह का आपके ऊपर बहुत बड़ा, है ना बहनों। ये अल्लाह की तरफ से क्या है, बहुत बड़ा फजल है। और इस फजल के लिए हम सबको क्या करना है बहनों, बहुत ही कोशिशें करना है, मेहनतें करना है, तलब करना है, फिक्रे करना है, दुआएं करना है। ये जो दौलत है ना कुरान का इल्म, ये बैठे बैठे नहीं आ सकता बहनों। पैसा आ सकता है, अगर मेरे शौहर मुझे मंथली पैसे देते हैं, मेरे माँ बाप देते हैं, है ना। कितने बार ऐसा होता है कि कोई जायदाद में छोड़ के चला जाता है, तो वो बैठे बैठे बादशाह भी हो सकता है, मालिक भी हो सकता है ना। कितनी बच्चे पैदा होते हैं बहनों, पर वो अरबपति होते हैं, वो तो अब भी पैदा हुए कुछ नहीं किए, पर वो ऐसे शाही खानदान में पैदा होते हैं कि वो पैदाइश से ही प्रिंस हो जाते हैं, है ना। तो पैसा क्या है बहनों, वो तो हर एक को मिल जाता है, मगर जो इल्म है, कुरान का इल्म है, वो हर एक को नहीं मिलता। जिसके साथ अल्लाह ताला बेहतराई का इरादा करता है, जिसके साथ अल्लाह ताला अच्छाई का मामला चाहता है, उसी को देता है बहन। और ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी नेमत है कि ऐसी बैठे बैठे नहीं आएगा। कितने लोग बोलते हैं कि अरे आपको इतना इल्म कैसे आता है, तो ये ऐसी बैठे बैठे नहीं आता है, इसके लिए वक्त निकालना पड़ता है, इसके साथ किताबों के साथ बैठना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, लिखना पड़ता है ना, तहकीक करना पड़ता है। देखो बहनों, एक इंसान जब एक जमीन को खोदता है, बहुत खोदेगा खोदेगा खोदेगा, तो कभी ना कभी उसको मीठा पानी नसीब हो ही जाएगा, है ना। मगर अगर कोई इंसान अलग अलग खोदता रहेगा, अलग अलग जगह खोदता रहेगा, तो वो कभी भी कहीं से भी कुछ नहीं पा सकता। समझ में आ रहा है। तो एक कुरान की तरफ आ जाओ, एक कुरान क्लासेस में जम जाओ, बराबर से उसको लेके चलो। तो यहाँ पर जब तुम सीखोगे सीखोगे सीखोगे, जैसे खोद रहे मीठा पानी मिल रहा है, उसी तरह यहाँ पे हम लोग अलग अलग क्लासेस जाएंगे, अलग अलग जगह जाएंगे, तो कहाँ पे क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है समझ में नहीं आएगा। एक जगह पे साबित कदम होके इस्तकामत के साथ, बहुत इंटरेस्ट के साथ बैठो। वरना क्या होता है ना, अलग अलग क्लासेस में अलग अलग इंटरेस्ट होता है, कभी वहां कुछ सीखे नहीं, सुने सुने नहीं सुने, क्या समझे नहीं समझे, ये सब होता है बहन। समझ में आ रहा है। तो पहला तो साबित कदम रहे, कुछ भी हो जाए क्लास को मिस ना करे। दूसरा क्या करेंगे बहनों, कुछ भी हो जाए हम क्या करेंगे, उसी की तरफ माइल रहेंगे, हम उसमें इस्तकामत रहेंगे, उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, शौक दिखाएंगे, तलब आएगी, फिक्र कोशिश मेहनत दुआ। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है बहन, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है। कोई मेरे को कमा के दे सकता है ना, मैं बैठी रहूंगी मुझे शौहर कमा के दे रहा है, मगर ये ऐसी चीज नहीं कि कोई मुझे कमा के दे देगा, कोई मुझे इल्म सीख के दे देगा, नहीं। उसके लिए मुझे खुद को, मेरी जाति, मुझे खुद को ये मेहनत करना। समझ में आ रहा है। और जब ये मेहनत इंसान करता है, कोशिशें फिक्रे दुआएं करता है, तो अल्लाह तबारक ताला उसको कुरान के नूर से, कुरान के इल्म से नवाजता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमेशा हम याद रखें बहनों कि हम इसकी क्या करें, बहुत कोशिशें करें, बहुत फिक्रे करें। अल्लाह तबारक ताला जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बहनों,
एक्सपर्ट से एक्सपर्ट भी होते हैं ना बहनों, उनसे भी गलती हो जाती है। जैसे एक ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट होगा बहनों, है ना, पर कभी ना कभी एक नींद का झोंका उसको आ गया, या कभी वो रात में कभी कुछ हो गया, तो उससे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं बहनों। कितना एक्सपर्ट होता है वो, बड़े बड़े पायलट, इतने साल का उनका ट्रेनिंग होता है, पर कहीं ना कहीं एक बार ऐसा होता है कि उनसे भी गलती हो जाती है ना। तो इसी तरह बहनों हम भी कितना भी कुरान में चले, कितना भी इल्म रखे, हमसे भी गलतियां हो सकती है। समझ में आ रहा है? बोलने का मकसद ये है कि हम जो फैसले कभी भी हमारे जिंदगी में कुछ भी फैसले लेने हो ना बहनों, सोच समझ के हम फैसले ले, बहुत सोच समझ के, अल्लाह से 2 रकात नमाज पढ़ के कि या अल्लाह अब मुझे फैसला करना है तो मैं इस्तिखारा करूं, अल्लाह से सही फैसला करूं, है ना। अगर समझो बहनों गलत भी हो गया तो अल्लाह तो देख रहा है ना मेरी नीयत क्या है। मतलब मैंने वहां पे जो है अपने चहीतों के, मुसलमान होने के, ये सब चीजों को नहीं देखा, है ना। अगर मैंने फैसला लिया तो दोनों को सुन के, सब चीजों को देखकर मैंने क्या किया है, फैसला किया है। बिकॉज इंसान है, इंसान से गलतियां भी होती है ना। तो जब भी फैसले ले, दुरुस्त फैसले ले, सोच समझ के फैसले ले। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कुरान का जो इल्म है, ये अल्लाह की तरफ से क्या है, बहुत बड़ी फजीलत है। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आयत पर आ जाते बहनों। यहाँ तक जो है हमारे जितने भी ये बातें थी माशाल्लाह, है ना, मैंने कहा ना कि 113 तक माशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बहनों, जहाँ पर अल्लाह ताला जो है जो सरगोशियां करते हैं, जो सीक्रेट टॉक्स करते हैं। अब ये जो कबीले वाले थे, ये रातों में सीक्रेट टॉक्स कर रहे थे, है ना, सरगोशियां कर रहे थे। यानी रातों में ये लोग मिलते थे, और ये लोग क्या करते थे कि ये लोग सोचते थे कि कैसे जो है हमारा नाम खराब ना हो, हमारा कबीले का जो बदनामी ना हो, बेइज्जती ना हो, और जो मुसलमान है वो जो मुनाफिक था, ओके, वो बच जाए, और कौन फंस जाए, यहूदी फंस जाए। तो ये सब सरगोशियां ये लोग रातों में जो करते थे, अल्लाह ताला जो है इसके बारे में यहाँ हम सबको भी क्या दे रहा है, एक बहुत बड़ी नसीहत दे रहा है बहनों। क्या नसीहत दे रहा है कि कोई खैर नहीं है, कोई भलाई नहीं है, कोई गुडनेस नहीं है बहुत सी ऐसी सरगोशियों में। यानी अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि उनकी बहुत सारी सरगोशियों में, सीक्रेट टॉक्स में कोई भलाई नहीं थी, कोई गुडनेस ही नहीं था। मगर कब बहनों, जो सरगोशी करना भी है, ओके, नजवा जो करना भी है, सरगोशियां करना भी है, तो कब कर सकते, तो उसके 3 जगह अल्लाह ताला बताए हैं। 3 जगह पे हम लोग सीक्रेट काउंसलिंग कर सकते हैं, सीक्रेट मीटिंग्स कर सकते हैं। यानी अगर बहुत सारे लोग हैं बहनों, तो मैं अगर किसी एक बहन को अलग लेके जाके कुछ बोलना चाहूँ, तो वो कब जायज है, कब जो है वो अलाउड है, सीक्रेट टॉकिंग कब अलाउड है, सरगोशी कब अलाउड है, वो यहाँ पर बताया गया। तो पहला कब है बहनों, मगर वो जो हुक्म दे किसका, सदके का। तो पहला सिचुएशन क्या है बहनों, कि अगर मुझे किसी को मशवरा देना है, ओके, कि भाई तुम जो है वो सदका करो, तो ये काम भी मैं क्या कर सकती हूँ, अकेले में किसी बहन को बता सकती हूँ। जैसे कि वो बहन है जो क्या है बहनों, वो जो बहन है वो सबके सामने अगर मैं बोलूंगी तो शायद वो शर्मिंदा हो जाएगी कि भाई तू सबके सामने क्यों बोली, अकेले में बोलती ना। हाँ, जैसे कि वो बहन बोलते ना कि अगर हमको कोई भी, देखो, सरगोशी जो है ना बहनों, ये क्यों मना है मैं पहले ये बताती हूँ। सरगोशी करना या सीक्रेट टॉक्स करना ये क्यों मना है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत फहमी पैदा हो जाती है, बदगुमानी पैदा हो जाती है, दुश्मनी पैदा हो जाती है। अगर सब बैठे हैं और मैं किसी को खुसफुस खुसफुस करती हूँ, तो बट ऑफ कोर्स सामने वाला लगेगा कि मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, है ना। बदगुमानियां पैदा हो जाएंगे, दुश्मनी पैदा हो जाएगी, गलत फहमी पैदा हो जाएगी। आ रहा है समझ में? तो ये अगर सरगोशी जो करना भी है, सीक्रेट टॉक्स करना भी है, तो 3 हालत में जायज है। कब, जब मैं किसी को सदके की बात कर रही हूँ, क्योंकि छुपा के देने में क्या होता है बहनों, सदका देना एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, है ना। जो इंसान इतना छुप के सदका देता है वो तो कल अर्श के साए में रहेगा, बहुत बड़ी नेकी है ना। तो कभी मैं किसी को, अगर मैं किसी को बोलना चाहती हूँ कि देखो भाई फला गरीब है, उसको सदका चाहिए, आप जरा कोशिश करो, मेहनत करो, है ना, तो मैं किसी को अकेले में लेके जाके ये सीक्रेट टॉक्स कर रही हूँ, तो ये क्या है, इस्लाम में अलाउड है, इस्लाम में जायज है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला क्या है बहनों,
पहला क्या है कि सत्य के बारे में मैं किसी को बता रही हूँ। दूसरा क्या है बहनों, दूसरा है मारूफ यानी नेकी के कामों के लिए। यानी एक बहन है जो दुपट्टा सही से नहीं पहनी, एक बहन है जिसके कपड़े में बहुत खराब कुछ दिख रहा है ना, तो ऐसी बहन को अगर मैं सबके सामने बोली, अरे देखो इसका दुपट्टा तो देखो कैसा है, इसका कितना खराब दिख रहा है सामने का, है ना, अगर सबके सामने बोलूंगी बहनों, तो इसकी तो पहली बात तो इज्जत चले जाएगी, बेइज्जत हो जाएगी, फिर इसको कितना खराब लगेगा, सबके साथ सब लोग हंसेंगे, हंसी मजाक करेंगे, है ना। और फिर क्या होगा बहनों, ये जो लड़की है ये कभी इस्लाम की तरफ आएगी ही नहीं, ये तो दुपट्टा ही छोड़ देगी कि भाई तुम लोग मेरे को महफिल में इतना मेरा मजाक उड़ाए, जॉब में दुपट्टा ही नहीं पहनती, है ना। तो ऐसा ना होना चाहिए बहनों। तो कभी भी कोई भी बातें जो ऐसी करनी है, वो क्या करेंगे, किसी को अलग लेके जाके हम लोग कर सकते हैं, कोई भी क्या, नेकी की बात, है ना। देखो बहन, आप नमाज नहीं पढ़ते, आप नमाज क्यों छोड़ दिए, नमाज पढ़ना चालू कर दो, कुरान क्लासेस क्यों नहीं आते, सबके सामने नहीं बोल सकते बहनों हम लोग ये सब बातें, उसको खराब लग जाएगा, उसकी इंसल्ट हो जाएगी, उसका दिल दुखेगा, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है, तो वो बहन को हम क्या कर सकते हैं, अकेले में समझा सकते हैं कि कंजूसी मत करो, अल्लाह ने तुमको कितनी दौलत दिया है ना, तुम जो है वो सबका खैरात करो, तुम जो है वो अच्छाई का काम करो। ये सब बातें हम क्या कर सकते हैं, सीक्रेट टॉकिंग, सरगोशी में कर सकते हैं। और तीसरा क्या है बहनों, इस्लाह करना लोगों के दरमियान, लोगों के दरमियान क्या करना, सुलह करना। अब सुलह करने में भी बहनों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीक्रेट टॉकिंग कर सकते हैं, मतलब किसी दो जन को मिलाने के लिए, हाँ, दो जन को मिलाने के लिए अगर मैंने झूठ का भी सहारा ले ली तो भी जायज है। ऐसा झूठ जो किसी का नुकसान नहीं कर रहा हो, समझ में आ रहा है। मैं कोई ऐसा झूठ ना बोल दूं कि किसी का नुकसान हो जाए, यानी ऐसा कोई झूठ बोल रही हूँ जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, जैसे मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई, ओके, और मियाँ यहाँ कंप्लेन, और वो मेरे भाई भाभी है, ओके, मेरे भाई भाभी है, उन लोग में लड़ाई हो गई, मियाँ बीवी है, अब मैं नड़न हूँ, हाँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ, भाई के पास भाई कंप्लेन कर रहा है या बहन भाभी कंप्लेन कर रही है, तो जब मैं भाई के पास जाती हूँ तो भाई उसकी इतनी बुराइयां कर रहे हैं, जब मैं भाभी के पास जाती हूँ तो भाई की इतनी बुराइयां कर रहे हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, झूठ का सहारा ले सकती हूँ, मैं भाई के पास बोल सकती हूँ कि अरे भाभी तो तुम्हारे लिए रो रहे, भाभी तुमको कितना चाहते हैं, तुमको कितना केयर करते, तुम ऐसा क्यों करते हो, हाँ, वो तुमको मिस कर रहे हैं। और मैं भाभी के पास जाके बोल सकती हूँ कि भाई तुमको कितना मिस कर रहे हैं, तुमको कितना चाहते हैं, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, वो तो तुम्हारी कोई कंप्लेन ज्यादा नहीं कर रहे, समझ में आ रहा है। तो ऐसा कोई झूठ जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, ऐसा कोई झूठ बोलकर की भी मैं क्या कर सकती हूँ, दो लोगों के बीच में सुलह रहमी कर सकती हूँ। समझ में आ रहा है, कभी कभी दो बहनों के बीच में हो जाता है, दो भाइयों के बीच में जायदाद के मामले में हो जाता है, तो ऐसों के अभी हम क्या कर सकते हैं बहनों, इस्लाह करे, खुद अल्लाह ताला कह रहे, उसके लिए अगर सरगोशी करने पड़े, सीक्रेट टॉकिंग्स करने पड़े तो भी क्या है, जायज है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कोई ये ऐसा करे, किसके लिए करना है, अल्लाह को राजी करने के लिए, ये सब क्यों चाह रहा है वो, अल्लाह की रजामंदी के लिए, यानी कि यहाँ पर हमारा नाम ना हो, अरे मुबीन तो क्या है, मुबीन ऐसा करी, मुबीन वैसा करी, नहीं, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, समझ में आ रहा है, मेरी वाहवाही नहीं हो, बल्कि मैं क्यों कर रही हूँ बहनों ये सब काम, ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, यानी वहां पर भी ये सब काम क्यों करना है, ताकि क्या चाहते हुए, अल्लाह की रजामंदी चाहते हुए। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि सून, अल्लाह ताला करीबी है, जल्द से जल्द मुझे क्या देगा, मुझे अता करेगा, बहुत, यानी अल्लाह ताला जो है ऐसे बंदे को क्या अता करेगा, बहुत बड़ा अजर देगा, अजर अजीम, है ना, बहुत बड़ा अजर देगा। तो इंशाल्लाह बहनों हमेशा याद रखना कि हमको रातों में और कुछ भी सरगोशी जो है वो नहीं करे, कोई भी टाइम पे जहाँ पे हम गीबतें, अक्सर क्या होता है बहनों, हाँ, अक्सर क्या होता है, हम गीबतें ही करते रहते हैं ना, अरे तेको पता है मेरी सास ऐसी है वैसी है, ये करी वो करी, सास बोलती मेरी बहू तो ऐसी है, मेरी बहू तो वैसी है। तो हम लोग ये सब सरगोशी में, ये सब सीक्रेट टॉकिंग्स में हम ना जाए बहनों, ओके। और किसी के बारे में हमको बोलना भी नहीं है,
ओके कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो जाने, अल्लाह जाने उसके अमाल। मगर हम क्या करें बहनों, हम जितना हो सके कोशिश करें कि हम ये गुनाह से बचे। सरगोशी में कोई खैर नहीं है बहनों, सिवाय तीन के, या तो चैरिटी देने में, सदका करने में, या तो नेकी करने में, या तो इस्लाह करने में। और अगर ये काम कर भी रहे तो किस लिए करना है, अल्लाह को राजी करने के लिए। और अल्लाह ताला क्या करेगा, बहुत बड़ा अजर देगा अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आयत ले कर लेती हूँ बहनों। और अल्लाह ताला कहते हैं, और जो कोई मुखालिफत करे रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई भी, जो वर्डिक, जो फैसला नबी ने कर लिया था उसके खिलाफ लोगों ने किए थे, हाँ? तो ऐसे लोग जो अपोजिशन करते हैं, हाँ, जो क्या करते हैं, मुखालिफत करते हैं किसकी, रसूल की, बाद इसके कि वाजे हो गया उनके लिए हिदायत, हिदायत वाजे हो गई है, सही रास्ता जो है वो मालूम हो चुका है। ये इल्म जो है, जो नबी पाक वसल्लम लाए हैं, कुरान और सुन्नत, हाँ, ये हिदायत आने के बाद जब वाजे हो चुका है सब कुछ, और ये वाजे होने के बाद अगर कोई रसूल की मुखालिफत करता है, और किसकी पैरवी करता है, कौन से रास्ते की, मोमिनों के रास्ते के अलावा की पैरवी करता है। यानी इसका क्या मतलब है बहनों, इसका क्या मतलब है मैं समझाती हूँ। जैसे कि, हाँ, जैसे कि बहनों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर अब कुरान और सुन्नत आ चुकी है। हाँ, अब कुरान सुन्नत आने के बाद वो क्या करता है, नबी की मुखालिफत करता है। हाँ, सुन्नतों को छोड़ के वो नबी की मुखालिफत करता है, हिदायत उसको पता है। हाँ, फिर भी वो क्या करता है, सहाबा के रास्ते को छोड़कर, सहाबा के तरीके को छोड़कर वो कोई और रास्ता अपनाता है। वो कैसा रास्ता होगा बहनों, अगर कोई जो सहाबा है वो तो सितारों के मानिंद है, हाँ, सितारों के मानिंद है ना। अब वो रास्ते को छोड़ के वो कोई और रास्ते को लेता है, तो अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को क्या करेगा, जो सुन्नतों को छोड़ेंगे और जो सहाबा के तरीकों को छोड़ेंगे। अल्लाह ताला, देखो बहनों, ये बहुत ही अहम आयत है, प्लीज इसको गौर से समझो बहनों, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में आज ये इतना आम हो चुका है। अल्लाह ताला ऐसे लोग जो सुन्नतों को अपनी लाइफ से निकाल दिए, सहाबा के तौर तरीकों को छोड़ दिए, अल्लाह ताला उनको कहता है, हम उनको फेर देंगे, हम उनको फेर देंगे जिस रास्ते में वो फिर गए। यानी जिस रास्ते में वो लोग चल रहे ना बहनों, हाँ, जिस रास्ते में वो लोग मुड़ गए ना, अल्लाह ताला उनको वहीं पर मोड़ देगा। यानी कि वो जिस गुमराही के रास्ते पे चल रहे हैं, अल्लाह ताला उनको वहां पर और तरक्की देता चला जाएगा। जो नूर आ चुका था, जो हिदायत आ चुकी थी, जो कुरान सुन्नत आ चुका है, वो छोड़ के, वो सुन्नत छोड़ के, सहाबा के तरीकों को छोड़ के वो कहाँ पे फिर गया, गुमराही की तरफ फिर गया। तो अल्लाह ताला उसको वहीं पे फेर देंगे, उसको वहीं पे तरक्की देते चले जाएंगे। वो गुमराही में खुश होता चला जाएगा, वो गुमराही में ही रहेगा, और उसी में उसकी क्या होती रहेगी, तरक्की होती रहेगी। दुनिया में तो ऐसा हो रहा है बहनों, हाँ, दुनिया में ऐसा हो रहा है। और आखिरत में क्या होगा, वो भी अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या होगा, और हम उसको जलाएंगे, या हम उसको दाखिल करेंगे जहन्नम में, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमारी फैमिली की हिफाजत करे, हमारे बच्चों की हिफाजत करे, हमारे उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करे। आमीन आमीन आमीन। आज ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है बहनों, आज हम लोग नबी की मुखालिफत कर रहे हैं, यानी कि क्या, सुन्नत है ही नहीं हमारी जिंदगी में, है ना। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कोई, है ना, ये सुन्नतों को छोड़ के, सहाबाओं के तरीकों को छोड़ के, वो रास्ते को छोड़ के जो भी रास्ते पे चलेगा, अल्लाह ताला उसको उसी गुमराही में तरक्की देते रहेंगे। और उसका ठिकाना फिर क्या होगा, कहाँ जलेगा वो, जहन्नम में बहनों, जहन्नम। सोच के देखो, आखिरत, दुनिया तो गई, दुनिया में गुमराही, आखिरत में जहन्नम। और वो क्यों ऐसा हो रहा है बहनों, ये इंसान
کیوں سنت پہ نہیں چل رہا ہے, کیوں صحابہ کے راستے پہ نہیں چل رہا ہے؟ پتا ہے کیوں بہنوں؟ کیونکہ ایسا انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے جا رہا ہے, وہ اپنی من چاہی زندگی جینا چاہتا ہے, وہ رب چاہی زندگی جینا نہیں چاہتا. وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات پہ چلے. اس کا دل کر رہا ہے ٹی وی دیکھنا, اس کا دل کر رہا ہے میوزک سننا, اس کا دل کر رہا ہے موویز دیکھنا, اس کا دل جو چاہ رہا ہے, جو دل خواہش کر رہا ہے, حجاب نہیں کروں, ہے نا, میں ایسا لائف جیوں, میں ویسا لائف جیوں, میں کوئی بھی طریقہ جیوں, مطلب اس کا دل جو چاہ رہا ہے وہ اپنی منچاہی زندگی پہ چل رہا ہے, وہ اس کی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. اس نے سنتوں کی قدر نہیں کی, اس نے صحاباؤں کے راستے پہ نہیں چلا. تو ایسا راستے کا کیا ہوگا بہنوں, ایسے انسان کا کیا ٹھکانہ ہوگا, سوچ کے دیکھ لو. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, ہم رب چاہی زندگی جیے, غلط خواہشات پر نہ چلے, ہے نا, غلط چیزوں پر نہ چلے, بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول, اللہ کے صحابہ نے جو راستہ بتایا ہے اس پر ہم چلے. آمین آمین آمین, ہے نا بہنوں. بہت ہی ڈر کا مقام ہے. آج یہ امت کا کیا حال ہے سمجھ میں آ رہا ہے. پھر لاسٹ آیت پر آ جاتی ہوں بہنوں. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا کس کو؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے, اللہ تعالیٰ اس مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے, اللہ معاف کر دے گا اس کے علاوہ, شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اس کو معاف کر دے گا جسے وہ چاہتا ہے. یعنی میں سمجھاؤں گی بہنوں اس کو, پہلے میں صرف آیت کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں. اوکے, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ کوئی اس کے ساتھ کیا کرے, اس کو شریک کرے, اس کو شرک ٹھہرائے, اور وہ معاف کر دے گا اس کے شرک کے علاوہ جس کو وہ چاہے. اور جو کوئی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو تحقیق کہ وہ گمراہ ہو گیا, وہ بھٹک گیا دور کی گمراہی. اب یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے بہنوں, اس پر بھی پلیز غور و فکر کرے, کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے بہنوں. شرک کی دو قسمیں ہوتی ہے, شرک اصغر اور شرک اکبر, ہے نا. بڑی شرک اکبر اور چھوٹی شرک اصغر. بڑے بڑے شرک تو ہم لوگ کو سب کو پتا ہے نا, جیسے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, ہے نا, جیسے کہ آئیڈل ورشپ کرنا, جیسے کہ بہت کچھ ہے بہنوں, مزاروں میں جانا, کسی کو اللہ کے ساتھ ویسا مقام دینا بہنوں, ہے نا, یہ بہت ہو رہا ہے بہنوں. جیسے کہ وہ اللہ سے بھی مانگتا ہے اور جا کے مزاروں میں بھی مانگتا ہے, منتیں کرتا ہے, اور ہمیشہ بولتا ہے کہ وہاں سے بچہ پیدا ہوا, وہ منت مانگنے سے بچہ پیدا ہوا, وہاں پہ جا کے کرنے سے مجھے یہ دعا قبول ہوئی. پھر وہ کیا کرتا ہے, ایسے وظیفے, ایسے کچھ رسموں میں, ایسے کوئی ٹریڈیشنز میں پڑ جاتا ہے بہنوں جو کہ ثابت ہی نہیں ہے. آ رہا سمجھ میں؟ یعنی کہ یہ جو شرک ہے نا بہنوں, شرک یہ گرگٹ ہوتا ہے نا, جیسے کہ اسکارپیون ہے نا, اسکارپیو ہوتا ہے ویسا ہے بہنوں, اسکارپیو جیسے کہ گرگٹ ہوتا ہے ویسا ہے یہ شرک. یعنی شرک جو ہے نا وہ ہمیشہ رنگ بدلتا رہتا ہے, ہمیشہ وہ ایک جیسا نہیں رہتا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو شرک تھا وہ آج نہیں ہوگا, اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہے وہ آج نہیں ہوگا. یعنی یہ جو ہے نا رنگ بدلتا رہتا ہے, جیسے کہ دور, جیسے کہ خاندان, جیسے کہ زمانہ چل رہا ہے ویسے ہی بدلتا رہتا ہے. بڑے بڑے نمازی, بڑے بڑے حجابی, بڑے بڑے داڑھی چھوڑنے والے, آج اتنے سارے لوگ ہیں مسلمان جو شرک میں مبتلا ہے بہنوں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسے رسم و رواج, ایسے ایسے کام خوشی میں اور غم میں کر رہے ہیں جو ثابت ہی نہیں ہے بہنوں. آ رہا ہے سمجھ میں؟ ایسے ایسے رسم و رواج ہے بہنوں, ایسے ایسے کام ہے بہنوں جو کرتے بھی ہے یا تو ان کا ساتھ دیتے بھی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا تو خود ہی کرتے ہیں, یا تو پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں کرتے ہیں مگر اس کا ساتھ ضرور دیتے, ہے نا. تو ایسے دونوں کام ہم لوگ نہیں کر سکتے بہنوں. شرک ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو بہت نفرت ہے. کافر تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی نہیں ہے, اس کے لیے بھی جہنم ہے, مگر اللہ کو پتا ہے, وہ پتا ہے کہ وہ میرے کو نہیں جانتا. کافر کیا ہے, وہ اللہ کو نہیں جانتا
اور اللہ کا جانتا بھی ہے تو اس نے انکار کر دیا ہے نا, اس نے انکار کر دیا اللہ کا. مگر جو مشرک ہوتا ہے نا بہنوں, اللہ کو سب سے زیادہ نفرت اس سے کیوں ہے, غصہ کیوں ہے پتہ ہے بہنوں, کیونکہ یہ اللہ کو جانتا ہے, یہ اللہ کو پہچانتا ہے, یہ مانتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں. سمجھ میں آتا ہے, یہ مانتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, پھر بھی یہ کیا کرتا ہے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتا ہے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو یہ چیز اللہ کو نہیں پسند. اس کے مقابل کسی کو رکھنا, اس کے مقابلے میں کسی پارٹنر کو لانا, اللہ کو یہ نہیں پسند. کہ اللہ بھی دعا قبول کیا اور یہ فلاح سے بھی ہوا. کتنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں بہن, کتنے پیر مرید پتہ نہیں کون کون, تو ولی اللہ ایسے لوگوں کو پال کے رکھے اور بولتے ہیں کہ ان سے ہوتا ہے. یہ جس دن بولیں گے اس دن شادی رکھیں گے, یہ جس دن یہ ٹائم بولیں گے اس دن ہم لوگ جو ہے وہ دکان کھولیں گے. ایسے ایسے مقام اور مرتبے عزتیں ان کو دیتے ہیں جس کی حد نہیں ہے. ایک کاروبار چل رہا ہے, ایک بزنس چل رہا ہے بہنوں لوگوں کا, اور یہ بہت ہی غلط جگہ ہے بہنوں. ہم یہ سب چیز سے بچے, اور یہ کیسے بچیں گے جب ہم توحید کو جانیں گے. اور یہ توحید کہاں جانیں گے, یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم جانیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے, یہ قرآن ہی ہے نا بہنوں, ورنہ قرآن آنے سے پہلے ہم سب یہ غلط کاموں میں پھنسے تھے. ہم سب نا اللہ کے پاس تو جاتے ہی تھے, اللہ کے علاوہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھائی پریشانی آئی تو کیا کرنا ہے نا, تکلیف آئی تو کیا کرنا, چلو بھاگو باباؤں کے پاس, چلو بھاگو مولانا کے پاس, بھائی وظیفے بتا دو, بھائی تعویذ دے دو, بھائی کیا لٹکاؤں, کیا جلاؤں, کیا لے کر آؤں, کیا پھونکوں, کیا گاڑوں, پتہ نہیں کیا کیا تو ہم لوگ پہلے کرتے تھے. مگر جب یہ الحمدللہ قرآن مجید زندگی میں آیا تو اس نے آنکھیں کھول دیا, اس نے ذہن بدل دیا, اس نے بتا دیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیا کرنا نہیں کرنا, کیا حلال کیا حرام. کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, یہ قرآن اپنا کام خود کرتا گیا, یہ ہماری اصلاح خود کرتا گیا. خود اس نے کیا کیا, غیر اللہ کی محبت دل و دماغ سے نکال دیا, ایک اللہ کی محبت دل میں ڈال دیا. ہم تو نبی سے بھی دعا نہیں کر سکتے, آج جا کے ہم کسی اور سے مانگ کر آتے ہیں, یہاں تو ہم نبی سے بھی دعا نہیں کر سکتے. ہم اگر مانگ سکتے ہیں تو صرف ایک اللہ سے مانگ سکتے, ایک رب العالمین سے مانگ سکتے. تو یہ سب باتوں کو ہم سمجھے جانے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے, بہت بڑی چیز ہے. شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اگر ایک انسان اسی کو کرتے کرتے اگر وہ مر جائے تو یاد رکھنا بہنوں, اس کی کوئی معافی تلافی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے, اگر ہاں زندگی ہے, جان باقی ہے, اس کو پتا چل جائے کہ میں شرک کر رہا تھا, تو وہ اپنی معافی تلافی کر لے. اگر یہاں پر جو بھی بہنیں بیٹھی ہے, جو بھی بہنیں کبھی بھی یہ سنے گی, پلیز اگر کوئی بھی غلط کام ہم کر رہے, اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑ رہے, اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ رکھے, اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ رہے, کسی پہ توکل کر رہے, تو یاد رکھنا بہنوں یہ سب چیزوں کو ہمارے ذہن سے اور دنیا سے ہٹا دے. ہمارا مانگنا صرف اللہ سے ہو, ہمارا توکل کرنا صرف اللہ سے ہو. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, یہ غیر اللہ کی محبت, عظمت, بڑائی سب چیزیں نکال دے بہنوں. ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, ایک اللہ کے ہم کو ہونا ہے, ایک اللہ اور اللہ کی رسول کی بڑائی ہماری زندگی میں ہو, ایک اللہ اور اللہ کے رسول کو ہم دنیا میں لے کے چلے. آ رہا ہے سمجھ میں. اور چھوٹا شرک کیا ہے, شرک اصغر, ریاکاری کرنا, دکھلاوا کرنا, دکھانا بہنوں, لوگوں کے لیے عمل کرنا. میں حج بھی جا رہی ہوں, سب کو بتا کے جا رہی ہوں, ارے میں حج جا رہی ہوں, حج جا, تاکہ لوگ میری تعریف کرے, واہ واہی کرے, ہے نا. سب کو بتا کے عمل کرنا. کچھ خیرات بھی کر رہی ہوں تو لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ پتہ ہے میں نے یہ کی, پتہ ہے میں نے وہ کی, میں تہجد سے اٹھ گئی, میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں, میں تو حجاب کرتی ہوں, میں تو اتنی اچھی, میں سب کا اچھا کرتی ہوں. لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی میں بہت اچھی ہوں, میرا دل اچھا ہے, میں اتنی اچھی ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. کیوں بہنوں, کیوں کیوں ہم کو بتانا ہے کسی کو بھی؟ جس کو جاننا ہے وہ جان چکا, وہ بس ہو گیا ہمارے لیے. یہ دکھلاوا, یہ ریاکاری, اللہ تبارک تعالیٰ کل کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا جس عمل میں ریاکاری اور دکھلاوا ہو. بھلے تم شہید ہو جاؤ, بھلے تم بڑے سے بڑے عالم ہو, حافظ ہو, بھلے تم بہت بڑے سخی ہو, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کل بارگاہ میں بلائے گا اور ان کو
جو ہے ان کے نام اعمال پھینکے گا ان کے اوپر کہ یہ تم نے میرے لیے نہیں کیا، یہ تم نے لوگوں کے لیے کیا، تم نے واہ واہی کے لیے کیا، تم نے نیم اور فیم کے لیے کیا، وہ جو تم کو مل چکا میرے نظروں میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں. اور اللہ تعالی اس کو پورا زیرو کر دے گا اور ایسے لوگوں کو اٹھا کے کہاں ڈالے گا؟ جہنم میں اوندھا ڈالے گا. بھلے وہ شہید ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے راستے میں شہید ہوا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے میں دین سکھانے والا، اگر دنیا اور دنیا کے لوگوں کے لیے اس نے کمایا ہے تو وہ اللہ کی نظروں میں کچھ بھی نہیں، زیرو ہے بہنوں، زیرو. جو بھی کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے لیے، ہے نا. اللہ اور رسول کے طریقوں پہ چلنا ہے نا. الحمدللہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ آیا نا کہ جو کچھ بھی کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے بہنوں؟ ہاں، کیوں کر رہے تھے وہ؟ تاکہ وہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کو راضی کرے. اللہ کے لیے ہر عمل کرنا ہے بہن. اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کر سکتے نہیں. اس کے علاوہ اگر وہ چاہے تو وہ معاف کرے جس کو وہ چاہے. یہاں پہ ہر جگہ یہ بتا دیا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہاں پہ نبی کو بھی اختیار نہیں ہے بہنوں. یہاں پہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا جس کو وہ چاہے وہ معاف کر سکتا ہے. یہاں ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ کل تم میرے لیے سفارش کرنا. ہاں، مرید پیر بابا آج کل کیا کیا ہو چکے ہیں جو بولتے ہیں کہ میں سب کو جب تک لے کے نہیں جاؤں گا جنت، میں جنت نہیں جاؤں گا. یہاں پہ بڑے بڑے انبیاء جو ہے وہ ڈرتے رہیں گے، کانپتے رہیں گے، منہ کھولنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوں گی. نبی کے پاس جائیں گے سب لاسٹ میں کہ ہمارے لیے سفارش کرو. اور آج کل ایسے ایسے پیر مرید ہے بہنوں جو بولتے ہیں ہم تمہارے لیے بات کریں گے، ہم تمہارے لیے فیصلے کریں گے، ہم اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کریں گے. کیسے ہوگا بہنوں؟ سوچ کے دیکھو. تو جو بھی ہے سب کچھ کس کے ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرک کے علاوہ سب گناہ معاف کر دے گا، چلو کر لو. نہیں بہنوں، ہر ایک گناہ کا وبال ہے. آیت آئی تھی نا، جو کچھ بھی گناہ کماؤ گے تمہارا ہی نقصان ہے، تمہارے نفسوں کے خلاف جائے گا. تو کوئی بھی گناہ نہیں کرنا ہے. یہاں پہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا وہ معاف کرے گا. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اور جو کوئی شرک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کوئی شرک ٹھہراتا ہے وہ تو چلا گیا بہت ہی دور کے راستے میں، ایسے راستے میں جہاں پہ یو ٹرن کرنا مشکل ہے. کبھی کبھی ہم لوگ بھی جاتے ہیں، ہاں راستے میں جاتے اتنا دور چلے جاتے بہنوں کہ جب کوئی بولتا ہے کہ ارے تم کہاں چلے گئے، تم کو تو یہاں آنا تھا، اب اتنے دور چلے جاتے بہنوں 2-3 گھنٹے. ہم لوگ بولتے جاؤ بھائی ابھی بہت تھک گئے ابھی نہیں آ سکتے. کون یو ٹرن کر کے واپس آئے گا؟ کبھی کبھی ایک ہی گلی میں رہتے بہنوں، جب کوئی میپ اپنا راستہ بتاتا ہے ایک ہی گلی میں اتنے بار گھومتے وہ گھر نہیں ملتا ہے تو اتنا بیزار آ جاتا ہے انسان کہ ارے کیا ایڈریس دے دیا، کتنا میپ لگا رہی ہوں، گوگل سے پوچھ رہی ہوں، نہیں مل رہا ہے تو نہیں مل رہا ہے. انسان ایک ہی گلی میں رہ کے تھک جاتا ہے. یہاں پر جو انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیتا ہے وہ اتنا دور چلا گیا بہنوں، اتنا دور چلا گیا کہ واپس اس راستے پر نہیں آ سکتا. یہ ایک ایسا وائرس ہے بہنوں جو انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. انسان اسی میں گھٹتا چلا جاتا ہے. شرک کرنے والا اتنا مطلب ایک دلدل میں پھنس جاتا ہے بہنوں کہ وہ واپس نہیں آ پاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایسے چنگل سے بچنا ہے، ایسے غلط کاموں سے بچنا ہے، اس کی طرف کبھی نہیں جانا ہے. اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے. اللہ کو اتنا مطلب توحید اتنا جان لے بہنوں کہ ہم یہ سب چیزوں سے بچے. یہ باباؤں سے، پیروں سے، ولی اللہ سے، یہ سب ان کا مقام اور مرتبہ ہے. الحمدللہ ہم ان کو مانتے ہیں پر ان سے مانگیں گے نہیں بہنوں، ہے نا. ہم ان سے کبھی ہاتھ نہیں جھکائیں گے، کبھی جھکنا نہیں ہے ان کے سامنے. آج مزاروں میں کیا نہیں ہو رہا ہے بہنوں. اللہ ہم سب
سب کی حفاظت کرے. بہت شرک کام ہو رہے بہنوں, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے. یہ بہت دور کی گمراہی ہے بہنوں, جو بہت انسان کو اللہ سے دور لے کر چلا جائے گا. سب گناہ معاف ہے, شرک کے گناہ معاف نہیں ہے. یہ ایک ایسا ایٹم بام ہے بہنوں, ایک ایسا بام ہے بہنوں, جو جب پھٹے گا نا تو سب تباہ ہو جاتا ہے نا, ویسا ہے بہنوں. اگر ایک انسان شرک کرتا ہو, وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے, کتنا بھی حجاب کر لے, کتنا بھی کچھ بھی کر لے بہنوں, اگر اسی حال میں موت آ گئی تو سب, جیسا بام سب کو ہلاک کر دیتا ہے نا, اسی طرح وہ اس کے شرک کے گناہ کو, شرک کا جو گناہ ہے وہ پوری نیکیوں کو تباہ برباد کر دے گا. وہ کچھ بھی نیکیاں کما لے بہنوں, کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ اس نے شرک کر آ گیا, اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر اس کی موت اس حالت میں آ گئی تو. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ہمارے باتوں میں بھی ہم شرک کا نہیں بولے بہنوں, کہ فلاں ڈاکٹر سے ہی میں اچھی ہوئی, یہ فلاں ڈاکٹر نہیں کرتا, نہیں آتا نا میرا بچہ نہیں بچتا تھا, ہے نا. ہم لوگ بولتے نا یہ فلاں ہاسپٹل میں نہیں گیا ہوتا تو یہ مر جاتا تھا. نہیں بہنوں, کسی میں طاقت نہیں ہے, نہ کسی چیزوں میں ہے, نہ بلڈنگ میں ہے, نہ ڈاکٹروں میں ہے, کسی میں نہیں ہے. اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے میرا بچہ بچ گیا, اللہ کے حکم سے وہ ڈاکٹر میں شفا ہے نا. کوئی چیز ہم کو نفع نقصان نہیں دے سکتی. آئس کریم کھائی بیمار ہو گئی, نہیں بہنوں, وہ چیز میں کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ کے حکم سے میری طبیعت خراب ہوئی, اللہ نے چاہا تو ہوا بہنوں, اللہ کے حکم سے وہ آئس کریم نے میرے کو نقصان دے دی. وہی آئس کریم پورا گھر کھاتا ہے, کسی کو کچھ نہیں ہوتا ہے, 2 جن کو ہو جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے بہنوں, کہ اللہ کا حکم تھا اس میں, ہے نا. تو ہمیشہ ہم کیا کریں, اللہ کو ہمیشہ ہر چیز میں اللہ کو بولے, اللہ کے اذن سے ہوا, اللہ کے حکم سے ہوا, کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. آمین آمین آمین. بڑے شرک سے, چھوٹے شرک سے, ہے نا, بڑے بڑے شرک سے ہماری حفاظت کرے. مشرک سے کبھی نفرت نہ کرے بہنوں. صحابہ بھی پہلے مشرک تھے, ہے نا. شرک سے نفرت کرنا ہے, شرک جو گناہ ہے اس سے نفرت کرنا ہے, مشرک سے نفرت نہیں کرنا ہے. وہ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے نا. اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے فیصلے کرے, ہم اس کو صحیح راستہ بتائے, صحیح تعلیم دے, صحیح چیز بتائے, قرآن سے اس کو جوڑے, اور ہو سکتا ہے وہ شرک کا گناہ اس سے ہٹ گیا, ہے نا. صحابہ بھی پہلے مشرک تھے, نبی آ کے کیا کرے, قرآن اور سنت بتا کے شرک کو ان کی زندگیوں سے نکال دیے, اور وہ پھر کیا ہو گئے, صحابہ ہو گئے, ہے نا. تو وہ جو مشرک ہے وہ بھی اللہ کو جانتا ہے, پہچانتا ہے, مانتا ہے, وہ اس کے اندر سے شرک نکل گیا تو وہ مسلمان ہو جائے گا, مومن ہو جائے گا, ہے نا. تو ہم انشاءاللہ ہر ایک سے محبت کرے, ہر ایک کو دین کی تعلیم دعوت دیتے رہا کرے, قرآن اور سنت کی. ہاں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین آمین آمین. دعا پڑھ لیتے بہنوں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت اما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.